Hallelujah. Praise the Lord, church. Hallelujah. Let's come into His presence once again. Lord has given us one more Sunday to worship Him. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में आए, कहें परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तेरी आराधना करना चाहता हूँ। फिर एक बार इस इतवार के दिन हम यीशु मसीह का स्वागत करेंगे, उस पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे हमारे बीच। हालेलुया। रूह पाक, तू इस जगह को, हमारे घर को परमेश्वर पूरी तरह से अपनी आत्मा से भर दे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी आत्मा के लिए, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर। जैसे हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, हम चाहते हैं कि परमेश्वर आप हर एक घरों में परमेश्वर, हर एक घर में जहां पर भी हमारे लोग परमेश्वर इस वक्त आराधना के लिए खड़े हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति परमेश्वर उस घर को भर दे परमेश्वर। अगर कुछ ऐसी बातें उस घर में हो परमेश्वर जो आपके तरीके से ना हो परमेश्वर, निकाल दे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज परमेश्वर हो जाने दे यीशु मसीह। आज हम जैसे हम आपके आराधना में जाते हैं परमेश्वर, हमारी अगुवाई कर। Lead us, Lord Master. Lead us to your cross, Abba Father, this morning. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let's worship Him. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.
बारिश होगी रूए पाक के बादल से खुल जाएंगे मैल भी मल भी अंदर से बारिश होगी रूए पाक के बादल से खुल जाएंगे मैल भी मन भी अंदर से Come on, lift it up.
God has come. अगर आपके दिल में कोई मैल हो तो वो धुल रहा है इस वक्त. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pour out your Spirit, Lord Jesus. Pour out, Lord Jesus. Keep pouring fresh on us, oh God, Jesus, this morning. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I see burdens going away, Lord Jesus. Lord, I see sick getting healed, God, Jesus. In spirit, things happening. There is a lot of movement in your houses today. The Lord is moving tremendously. Hallelujah. Keep worshiping. अपने हाथों को उठाइए. अपनी आंखों को बंद करें. इधर उधर ना देखें. यीशु मसीह की ओर देखें. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Keep pouring out fresh on us, Lord. Keep pouring out, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master, for your visitation yet again this morning. Thank you, Master, for pouring out in abundance, Lord. Lord, we have people with different problems, Lord Jesus, in our houses. A few of us will still speak to you, Lord Master, but a few of us, they don't want to talk about it, Lord Jesus. Lord, I pray, Master, that you touch every soul in that kinds, Lord Jesus, who does not talk, but they have suppressed things inside their hearts, God Jesus. Lord, they are burdened, Lord Master, with different things, different aspects of life. बहुत सी ऐसी वैसी बातें परमेश्वर जो उनके जीवन में हो रही हैं, जो वो किसी से कहना नहीं चाहते, वो बोल नहीं पाते. परमेश्वर, तेरे रूह से परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि आज उन लोगों को परमेश्वर तू उनके अंदर से चंगाई देगा. परमेश्वर, उनके अंदर के रूह को तो अब ठीक करोगे परमेश्वर इस वक्त, क्योंकि आपने कहा कि आप मैल को धो दोगे परमेश्वर. ऐसी मैल परमेश्वर जो बरसों से अंदर बैठा हो परमेश्वर, उस मैल को परमेश्वर आप निकाल रहे हो इस वक्त. Lord, you are removing that stubborn dirt, Lord Jesus, from the hearts of our people, Lord Master, from our brothers and sisters, Lord Jesus, Father God, who are burdened during these days, God Master. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Lord, we want to thank you, Master, for this time. Lord, we want to thank you for you spoke to our hearts once again this morning. Jesus, we lift your name up high once again. We submit our church into almighty hands, Lord Master. Every person who's standing right in front of the screens, Lord Jesus. Every child, Lord Master, who's attentive to your word, to your songs, Lord Master. Father, we submit them into your almighty hands this morning. Let your Holy Spirit fall on everyone, Lord Jesus. Let every person experience that difference, Lord Master. When you come, darkness has to flee. If there is any dark corners in our houses, if there is any dark corners in our lives, let that darkness flee as Jesus, the light, is already in the house. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद. जैसे हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर, हम मांगते हैं परमेश्वर आपसे आपकी उपस्थिति, हमें आगे बढ़ने की शक्ति परमेश्वर. Lord, we ask of your special favor upon us, God Master, as we lead the congregation into worship. Thank you, Jesus. In Jesus, the most precious name, we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Church, जोरदार तालियों से हम यीशु मसीह का स्वागत करेंगे. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आइए हम एक जोरदार स्तुति करेंगे यीशु मसीह के साथ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो,
मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है धन्य कहता रहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ओ ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही मेरे रोगों को चंगा करता है। धन्य हो वही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही मेरे रोगों को चंगा करता है। वही तो मेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। वही तो मेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। Come on everybody, put your hands together for the Lord is in the house. Hallelujah. Jesus is in the house. Hallelujah. Hallelujah. सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल को खींच के मुझे उबारा। धन्य हो सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल को खींच के मुझे उबारा। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है धन्य कहता रहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। Come on everybody, अपने हाथों को बजाकर धन्य कहेंगे परमेश्वर को। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह को, क्योंकि यीशु मसीह हमारे बीच है। हालेलुया हालेलुया। यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो। सारे सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो। सारे सृष्टि उसको धन्य कहो। उसके राज्यों के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। उसके राज्यों के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है मुझको धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है धन्य कहता रहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को 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 धन्य धन्य कहो।
यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, ऐ सारे सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो, धन्य हो, ऐ यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, ऐ सारे सृष्टि उसको धन्य कहो। उसके राज्यों के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। उसके राज्यों के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। प्रियो, यीशु मसीह अपने आप को अपने नाम से जानता है। हालेलुया। बाइबल सेज ही नोज यू बाय योर नेम। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह पर केंद्रित हो इस वक्त, हालेलुया, अगर आपका तन मन धन यीशु मसीह के पास हो इस वक्त, तो आप ये जान रहे होंगे कि यीशु मसीह आपको इस वक्त बुला रहा है। यीशु मसीह आपको इस वक्त आपके नाम से बुला रहा है। वो आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, हर एक चीजों को जानता है। हालेलुया। आइए हम यीशु मसीह की उपस्थिति में बने रहें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय को यीशु मसीह के लिए खोल दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोराया चोरी करने
यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर, वो तुम्हारे नाम से तुमको जानता है। हालेलुया। तेरा नाम से वो तुझे जानता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। जैसे भी है हम, यीशु मसीह हमें बहुत चाहता है। हालेलुया। कभी पूछा है अपने आप से कि क्यों चाहता है हमारा परमेश्वर हमें इतना? हालेलुया। जैसे आप अपने बच्चों को चाहते हो, वैसे ही हमारा परमेश्वर है जो हमें चाहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे तू इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे तू इतना प्यार? उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे तू इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे तू इतना प्यार? Thank you, Jesus. कई बार हम यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल पाते, हम अपना रास्ता भटक जाते हैं, इतना कुछ बोल देते हैं यीशु मसीह या अपने परमेश्वर के खिलाफ भी, फिर भी यीशु मसीह हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। तेरी राहों पर चलते चलते कहीं बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे तू इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे तू इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे तू इतना प्यार? कई बार तुझे खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुझे खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा
मुझसे तू इतना प्यार, तू क्यों करता मुझसे तू इतना प्यार, तू क्यों करता मुझसे तू इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे तू इतना प्यार। Thank you Jesus for loving us, Lord Master. Thank you Master for being our support, Lord Master. धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आपका, क्योंकि आप अपने हमारा एक ढाल बनकर हमारे साथ चलते हो। हमारा साथ परमेश्वर आप हर एक वक्त देते हो। ऐसा परमेश्वर आप हो परमेश्वर। When we have never remained faithful with you, you continue to be faithful to us, Lord Jesus. As human beings, Lord Master, we go astray many a times, Lord Master, but you, your love, Lord Master, pulls us back and gets us on the track, Lord Jesus. Thank you, Master. Thank you, Master. धन्यवाद परमेश्वर आपके इस प्यार के लिए। धन्यवाद परमेश्वर आपके इस आशीष के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। हम अपने आप को, कलीसिया को परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर, इस वक्त जो परमेश्वर आप कुछ लोगों को छू रहे हो परमेश्वर, हम उन सबको आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। उनके हृदयों से बातें कर परमेश्वर, उनके हृदयों से बातें कर परमेश्वर। अगर परमेश्वर ऐसी कुछ बातें उनके हृदयों में हो परमेश्वर, ऐसे कुछ मेल अगर उनके घर में, उनके हृदय में बैठा हो परमेश्वर, तो हम प्रार्थना करते हैं कि आज उस मेल को आप खत्म कर देंगे यीशु मसीह के नाम से। Thank you Jesus. Thank you Master. Thank you Lord. Thank you Jesus for your visitation once again. Thank you Master for this morning once again. Thank you Abba Father. We commit ourselves into your almighty hands. Father God, the word that's going to come, the offering that's going to come, Lord Jesus, the bread and wine, Lord Master. Father God, everything, Lord Jesus, into almighty hands, Lord Master. Take control, Lord Jesus. The remaining portion, Lord Master, of this worship, we submit it to your almighty hands, Lord Master. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Let your spirit continue to move, Lord Master, in the houses, Lord Jesus. People who are hearing us far away, far distance, Lord Jesus, in this country, on the globe, Lord Jesus, wherever they are, Lord Master, let your touch be experienced, Lord Master. Thank you, Jesus. We send your healing, Lord Master. We send your word, Lord Master. It never returns void, Lord Jesus. Thank you, Master. Thank you, Jesus. In Jesus, the most precious name we pray. Amen. Praise the Lord, church. Praise the Lord, कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday morning. और ये अच्छी बात है कि रविवार की सुबह आज हम आपके I साथ believe हैं। today's word is going to bless you. मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन आपको आशीषित करेगा। Today's word, आज का वचन, today's word. आज का वचन, What kind of God we pray to? हम किस तरह के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। Many people pray to God, बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, but they don't know why their prayers are not getting पर answered. वो ये नहीं जानते कि उनके प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है उन्हें। Because they know God as their creator. क्योंकि वो परमेश्वर को जानते हैं एक सृष्टि का निर्माण करता होने But के there is no नाते। relationship between God and them. पर परमेश्वर और उनके साथ कोई संबंध नहीं है। Let's turn to the Bible to see what Jesus is saying. और आइए हम पवित्र शास्त्र की ओर देखिए, ये देखने के लिए कि यीशु मसीह क्या कहते हैं। Matthew 7 verse 11. मत्ती का 7वां अध्याय 11 वचन। If you then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father who is in heaven give good things to them that ask him. जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। This promise tells us what kind of God we have. और ये जो वादा है वो कैसा, वो हमें कहता है कि कैसा परमेश्वर है हमारा। This kind of promise says what God we have who answers our prayer. और ये वादा हमें कहता है कि हमारा कैसा परमेश्वर है जो हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। Before he talks about the Father in heaven, और हमारे स्वर्गीय पिता के के बारे में बात करने से पहले he talks about you and I who are fathers upon this earth. वो आपके और हमसे हमारे बारे में बात करता है जो पिता है इस धरती के ऊपर। According to Genesis chapter 6
and verse 5. और उत्पत्ति का 6वां अध्याय और 5वां वचन के अनुसार Jehovah saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। Bible says man is evil. और पवित्र शास्त्र कहता है कि मनुष्य जो है दुष्ट है। Let's turn our Bible to Ecclesiastic chapter 7 verse 29. और आइए हम अपने पवित्र शास्त्र को खोले सुबोपदेशक का 7वां अध्याय और 29 वचन। Behold, this only have I found, that God made man upright, but they have sought out many inventions. देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। As generation passed by from Adam, man's heart became evil. और जैसे पीढ़ी से पीढ़ी आगे बढ़ते गए मनुष्य का हृदय और बुरा बनते गया। That is why God says, you are evil people. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम दुष्ट लोग हो। And even though you are evil people, you give good gifts to your children. और तुम दुष्ट हो तब भी तुम जो है अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो। Mark chapter 7 verse 22 and 23 says, मरकुस का 7वां अध्याय और 22 और 23 वचन कहता we है have covetousness, we have wickedness, we have deceit, we have lavishness, and evil eye, railing, pride, foolishness. And verse 23 says, all these evil things proceed from within and they defile the man. लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रोधुष्ट, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। Psalm 116 verse 11 says, और भजन संहिता का 116 और 11 वचन कहता है, in my haste, I said in my haste, all men are liars. और मैंने उतावली से कहा सब मनुष्य झूठे हैं। Romans chapter 3 and verse 4 says, और रोमियो का 3रा अध्याय और 4था वचन कहता है, God forbid, let God be found true, but every man is a liar. और रोमियो का 3रा अध्याय 4था वचन कहता है, कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। Let me tell you, I want to tell you on this occasion about a man who was very, very rich man. और मैं आपको इस जो है समय बताना चाहता हूँ एक व्यक्ति के बारे में जो काफी धनवान व्यक्ति था। He was a very, very prominent singer. और वो काफी बड़ा गायक था। He was so famous that when he comes out, crowd comes to see him. और वो इतना जो है मशहूर था कि जब वो बाहर आता था तो भीड़ जमा हो जाती थी उसको He had देखने। only one daughter. उसके पास सिर्फ एक बेटी थी। One day that daughter asked his father, और एक दिन वो बेटी ने अपने पिता को पूछा, Dad, I want to go to Disneyland. पिता मुझे जो है डिज्नीलैंड जाना है। And the father was not willing to take her. और पिताजी जो थे वो उसको डिज्नीलैंड लेके नहीं जाना चाहते थे। Because when he goes to the Disneyland, lot of people will start gathering around him. क्योंकि वो जब डिज्नीलैंड में जाएंगे तो बहुत सारे लोग उनके आसपास जो है इकट्ठे हो जाएंगे। He never wanted to face crowd. और उसको भीड़ का सामना नहीं करना था। But his daughter insisted. परंतु उसकी बेटी ने जो है वो कहा। Finally the father called the Disneyland owner. और अंत में जो पिताजी ने जो है डिज्नीलैंड के मालिक को कॉल किया। He asked the Disneyland owner, what is your earning per day? और मालिक को पूछा कि तुम एक दिन में कितना कमाते हो? The Disneyland owner said 4 crores. और जो डिज्नीलैंड का मालिक था उसने कहा 4 करोड़। So he asked the owner of the Disneyland, और फिर उसने डिज्नीलैंड के मालिक को पूछा, I will give you 4 crores for one day. मैं तुझे 4 करोड़ एक दिन का देता But हूँ। that day you should keep Disneyland closed. पर उस दिन तुम्हें डिज्नीलैंड को बंद रखना है। And that day he took his daughter when the Disneyland was closed. और उस दिन वो डिज्नीलैंड में अपनी बेटी को लेके गया। Let me tell you, his daughter enjoyed the Disneyland. और मैं आपको बताता हूँ डिज्नीलैंड उसकी बेटी ने उसका मजा उठाया। This is what the Bible ये says. पवित्र शास्त्र कहता है। Even though you are evil, और तुम बुरे हो तब भी still you give best gift to your children. तब भी तुम हम अपने बच्चों को सबसे उत्तम भेंट देते हो। What about the Father who is in heaven? और फिर ये सोचो स्वर्गीय पिता
जो स्वर्ग में है उसके बारे में क्या? You should know whom you are asking to. आपको पता होना चाहिए आप किससे चीजें मांग रहे हो। You are asking to the Father who is in heaven. आप स्वर्गीय पिता से मांग रहे हो। I will come at the end to tell you how he can become your father. मैं अंत में आऊंगा आपको बताने के लिए कि वो आपका पिता कैसे बन सकता है। Many people in the world doesn't know him as a father बहुत सारे लोग संसार में उसको एक पिता के नाते नहीं जानते। because father relationship only comes when we are relating with him. क्योंकि पिता और पुत्र जो है तभी बनता है जब हम एक संबंध रखते हैं उसके साथ। The whole world understands that he is our creator. और पूरा संसार ये जानता है कि वो हमारा सृष्टि का निर्माण करता है। Now we should look what the Bible says about that God who is in heaven. और अब हमें ये देखना है कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है उस परमेश्वर के बारे में जो स्वर्ग में है। Till now we read the scripture, we talked about the evilness of man. और अब तक जितने भी हमने वचनों को पढ़ा वो सारे वचनों ने बोला कि मनुष्य कितना दुष्ट है। Now let's look what the Bible says about God in heaven. और आइए देखिए परमेश्वर क्या कहता है। आइए देखिए पवित्र शास्त्र क्या कहता है परमेश्वर स्वर्गीय परमेश्वर के बारे Psalms में। 119 verse 68. भजन संहिता का 119 और 68 You are a good God. तू भला है और भला करता भी है। You are a good God and you do good things. तू भला है और भला करता भी है। Yes, can you say our God is good? हमारा परमेश्वर भला है क्या हम ये कह सकते हैं? Can you say God is good all the time? क्या हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर हमेशा भला है? If you are listening through the YouTube, just raise your right hand and say God is good. और अगर आप YouTube के द्वारा सुन रहे हो तो अपने दाहिने हाथ को उठाओ और कहे परमेश्वर भला है। 1 Timothy chapter 6 verse 117. और पहला तिमोथियों का 6वां अध्याय और 17वां वचन। Command those who are rich in this present world not to be arrogant, not to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। Let's put our hope in that God और आइए हम उस परमेश्वर पर हमारी आशा को रखें who richly provides us with everything for our enjoyment. जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। Many people who are rich doesn't have sleep in the night और बहुत सारे लोग जो धनवान है उनको रात को नींद नहीं आती है because everything is uncertain in their life. क्योंकि उनके जीवन में उनको पता नहीं होता कब क्या हो जाएगा। Riches are always uncertain. Today it is with you, tomorrow it will go to someone else. और धन का कभी कोई भरोसा नहीं होता है, कल आपके पास है परसों किसी और के पास होगा। Let's keep our hope upon that God और आइए हम हमारा आशा उस परमेश्वर पर डालते हैं who will provide us everything for our enjoyment. जो हमें सब कुछ देगा बहुतायत से हमारी सुख के लिए। Psalms 34 verse 10 says, the young lion do lack and suffer hunger, but they that seek Jehovah shall not want any good thing. और भजन संहिता 34 अध्याय और 10 वचन कहता है, जवान सिंह को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। Yes, this scripture is very important to understand. Even young lion children lack and they hunger. और जवान सिंहों के बच्चे जो है वो भी जो है भूखे रहते हैं। But those who seek the Lord shall never lack any good thing. परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। We are describing about our God. और हम जो है हमारे परमेश्वर के बारे में कह रहे हैं। We are talking about the goodness of our God. हमारे परमेश्वर की भलाई के बारे में कह रहे हैं। Psalms 84 verse 11. और भजन संहिता का 84 और 11 वचन। For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good things does he withhold from those who walk uprightly. और Psalms 84 verse 11. भजन संहिता का 84 और 11वां वचन। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। Hallelujah. यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं
उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। If you are walking uprightly with him, the Lord confirms you, no good thing will he uphold from और you. परमेश्वर कहता है अगर आप खरी चाल चलते हो तो मैं कोई भी वस्तु, कोई भी अच्छी वस्तु आपसे रख न छोड़ूंगा। Your Jehovah is a sun and a shield. और मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हारा सूर्य और ढाल बनूंगा। Let me tell you, God is the giver of good gift. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर अच्छी भेंट और अच्छी वस्तुएं देने वाला This is परमेश्वर what is है। written in Deuteronomy chapter 23 and verse 5. और ये लिखा है व्यवस्था विवरण का 23वां अध्याय और 5वां वचन में, God is the giver of good gift. परमेश्वर अच्छी भेंट और अच्छी वस्तुएं देने वाला His परमेश्वर goodness है। is so powerful that an evil thing becomes good. कि उसकी भलाई इतनी सामर्थ्यशाली है कि दुष्ट चीजें भली हो जाती है। And this is what is mentioned in Deuteronomy chapter 23 and verse 5. Let us see what happens. और ये लिखा है व्यवस्था विवरण का 23वां अध्याय 5वां वचन में। आइए हम देखते हैं क्या होता है। Nevertheless, Jehovah thy God would not hearken unto Balaam, but Jehovah thy God turned the curse into a blessing unto thee, because Jehovah thy God loved thee. परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बालाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता है। You know what the Bible is talking about? और आपको पता है पवित्र शास्त्र क्या बोलता है? When he blesses a person, जब वो किसी व्यक्ति को आशीष देता है, even the curse in his life turns to be good. तो उसके जीवन का श्राप भी जो है भलाई उत्पन्न करने लग This जाता is the है। God which we have. और ये हमारा परमेश्वर है। Let's turn our Bible to John chapter 16 and verse 20. और आइए हम अपने पवित्र शास्त्र को देखिए। यूहन्ना Verily, verily, I say unto you that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice. Ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शौक होगा, परंतु तुम्हारा शौक आनंद में बदल दिया जाएगा। Hallelujah! This is God what we serve. और ये हमारा परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। He shall convert our sorrow into our joy. वो हमारे शोक को जो है हमारे आनंद में बदल देगा। Psalms 112 verse 6. और भजन संहिता का 112 और 6वां वचन, For he shall never be moved, the righteous shall be had in everlasting remembrance. वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। Yeah, God is going to remember you forever. परमेश्वर आपको सर्वदा याद रखेगा। This is the promise for you. Our God cannot be moved. और ये एक वादा है आपके लिए कि वह तो सदा तक अटल रहेगा। हमारा परमेश्वर को Nobody can shake our हमारे God. परमेश्वर को कोई हिला नहीं सकता। I am talking about the God whom you are going to pray today. और मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूँ जिसको आज आप प्रार्थना करोगे, Who is the God of heaven. वो स्वर्ग का परमेश्वर है। Matthew 7:11 says he is the Father in heaven. He will definitely give you good gifts, because even when you are evil, you give good gifts to your children. मत्ती का 7वां अध्याय और 11वां वचन कहता है कि आप बुरे हो तब भी आप अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं और भेंट देते हो, तो वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, वो तुम्हें कितनी अच्छी वस्तुएं और भेंट देगा। Listen what I am saying to you now. और सुने जो मैं आज कह रहा हूँ। Whatever good things you need from God today, expect that you will receive. और जो कुछ भी अच्छी भेंट चाहते हो आप परमेश्वर से, आप अपेक्षा करो और आपको मिल जाएगी। 1 John 4:8. और पहला यूहन्ना का 4वां अध्याय 8वां वचन, 1 John 4:8. Whoever does not love does not know God, because God is love. और पहला यूहन्ना का 4वां अध्याय और 8वां वचन, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। Yes, I want to tell you something. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। There was a man who was very, very upright in God's eyes. एक व्यक्ति था जो परमेश्वर की आंखों में काफी खरी चाल चलने वाला था। He used to love God so much. परमेश्वर से बहुत प्रेम रखता था। He was a blessing unto many. और वो बहुत
लोगों के लिए आशीष का कारण But there था। were certain people who are not happy with him. पर बहुत सारे पर कुछ ऐसे लोग थे जो उससे खुश नहीं थे। They wanted him to die. वो चाहते थे कि वो मर जाए। So many times they attempted by putting poison in his food. तो बहुत बार वो लोगों ने उसके खाने में जो है जहर को डाला। But let me tell you, he never died. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कभी नहीं मरा। Because whenever the food is to come before him, क्योंकि जब भी खाना उसके भोजन उसके सामने आता था, he is to thank God for the food. वो परमेश्वर को धन्यवाद देता था भोजन के लिए। He is to say, God bless it. और वो कहता था कि परमेश्वर इसे आशीष दे। Let me tell you, this is the God of the और Bible. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये पवित्र शास्त्र का परमेश्वर Even है। poison cannot do anything in his body. और उसके शरीर में जो है जो जहर है वो भी कुछ नहीं कर सकता था। Because the God of the Bible says, even the curse I will make it into a blessing. क्योंकि पवित्र शास्त्र का परमेश्वर कहता है कि श्राप को भी आशीष में बदल दूंगा मैं। God can give you anything, not only good things. और परमेश्वर आपको सब कुछ दे सकता है, सिर्फ अच्छी परमेश्वर आपको कुछ भी दे सकता है, सिर्फ अच्छी चीजें नहीं। Yes, anything, whatever you ask. जो भी तुम मांगते हो। Philippians chapter 4 and verse 19. फिलिपियों का 4 अध्याय और 19 वचन। And my God will meet all your needs according to the riches and glory in Christ Jesus. और फिलिपियों का 4 अध्याय और 19 वचन। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। Yes, everything whatever you need, God will supply all your needs. और जो जिस भी चीज की तुम्हें जरूरत है परमेश्वर उसे पूरा करेगा। John chapter 14 verse 14. यूहन्ना का 14 अध्याय और 14 वचन। You may ask me for anything in my name and I will do it, Jesus said. यदि तुम मुझे से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। Anything you ask in my name. यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे। Now very important to understand, you need to ask in the name of Jesus. बहुत ही महत्वपूर्ण है ये समझना कि आपको यीशु मसीह के नाम से पूछना है। There is no restriction, Jesus said. और किसी भी चीज की जो है बाधा नहीं है। You can ask anything. आप कुछ भी पूछ सकते हो। Anything in my name. कुछ भी। Do you want a job? क्या आप नौकरी को चाहते हो? You can ask in the name of आप Jesus. यीशु मसीह के नाम से पूछ सकते हो। Do you want good health? You can ask in the name of क्या आप Jesus. अच्छी स्वास्थ्य चाहते हो तो आप यीशु मसीह के नाम से मांग सकते हो। Are you going through financial crisis? You can ask in the name of आप Jesus. आर्थिक समस्या से जा रहे हो तो आप यीशु मसीह के नाम से मांग सकते हो। Jesus said you can ask anything in my name. यीशु मसीह कहता है कि मेरे नाम के द्वारा आप कुछ भी मांग सकते हो। I will do it for you. मैं वो तुम्हारे लिए कर दूंगा। John 16 and verse 24. और यूहन्ना का 16 अध्याय और 24वां वचन। Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive and your joy will be complete. अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। There is one person who is watching us in the YouTube for the first और एक time. व्यक्ति है जो YouTube पर हमें देख रहा है पहली बार। You might be astonished that whose name we should ask. और आप चौंक गए होगे कि हमें किस नाम से मांगना है। Because you have never used the name of Jesus Christ. कि हमने कभी यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल नहीं किया है। You want promotion? Ask in Jesus' name. और अगर आपको बढ़ोतरी चाहिए तो यीशु मसीह के नाम से मांगो। The Lord can do it for you. परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। This is what His promise is. ये उसका वादा है। If you have not asked, if you have asked nothing, you will receive nothing. और अगर आपने कुछ भी नहीं मांगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। Ephesians chapter 4 and verse 6. और इफिसियों का 4 अध्याय और 6 वचन। Ephesians chapter 4 and verse 6. इफिसियों का 4 अध्याय और 6 There is only one God and one Father who is the Father of all. और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। There is one God and He is the Father of all. और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो Let me सबके tell you, He is ऊपर only one God who created heaven and the earth. और सबके मध्य में। Many people think that there are many God. और बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत सारे परमेश्वर है। Let me tell you, there is only one God. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक ही परमेश्वर And है। Bible says He has a relationship with you like a father only when you accept Jesus Christ as your personal savior. और पवित्र शास्त्र कहता है कि वो एक पिता है और उसका एक संबंध है आपके साथ यीशु मसीह के द्वारा। So if you have a relationship with God,
because of Jesus Christ. और अगर आपके पास परमेश्वर के साथ एक संबंध है यीशु मसीह के द्वारा, Only through Jesus you can build a relationship. यीशु मसीह के द्वारा ही आप एक संबंध बना सकते John हो। 1:12 clearly says those who accept Jesus in their life, God gave them the right to be called as their children. और यूहन्ना का पहला अध्याय 12 वचन कहता है कि जो यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया है परमेश्वर की संतान होने का। The God of heaven can become your father. और स्वर्गीय परमेश्वर आपका पिता बन सकता है। The God whom you are going to pray today and receive the blessing can become your father. और आज जिस परमेश्वर से आप प्रार्थना करोगे और आशीष को पाओगे वो आपका पिता बन सकता है। The Father in heaven doesn't make anyone to go without he receives the blessing. और स्वर्गीय पिता किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता बिना आशीष के। Deuteronomy chapter 2 and verse 7. और व्यवस्था विवरण का दूसरा अध्याय और 7वां वचन। For Jehovah thy God has blessed thee in all the work of the hand, he hath known by thy walking through his great wilderness. These 40 years Jehovah thy God has been with thee, and thou hast lacked nothing. क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है। God carried 20 lakhs people from one country to the other country. और परमेश्वर 20 लाख लोगों को परमेश्वर ने एक देश से दूसरे देश तक लेके गया। And when they were going from one country to the other country, they were going through desert and wilderness. और जब वो एक देश से दूसरे देश में जा रहे थे तो वो जो है जंगल से गुजर रहे थे। 40 years God says, I took care of you. 40 साल मैंने तुम्हारा देखभाल किया है। God says, even though you are going through wilderness, you lack nothing. और परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम जंगल और रेगिस्तान से भी गुजरते हो तो तुम्हें किसी चीज की घटी नहीं होगी। This is the God we are talking about, who is the God of heaven. और इस परमेश्वर के बारे में हम बात करते हैं जो स्वर्ग का परमेश्वर है। Matthew chapter 28 and verse 20. और मत्ती का 28वां अध्याय और 20वां वचन। This is what Jesus said. ये यीशु मसीह ने कहा, I am going to be with you even at the end of the world. और मत्ती का 28-20 कहता है, यीशु ने ये कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. This is what Jesus said. और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। Yes, this is what Jesus is promising. और यीशु मसीह ये वादा कर रहे हैं। Acts chapter 4 and verse 35. और प्रेरितों के काम 4वां अध्याय और 35वां वचन। Acts chapter 4 and verse 35. You know, this was the early time church. और ये जो है पुराना समय था। Acts chapter 4 verse 35. Acts chapter 4 and verse 35. Yes, and this was the early church. और ये जो है पहली कलीसिया थी। They used to bring everything to the apostle. वो सब कुछ जो है अपोस्टल के सामने लाते थे। प्रेरित वो सारे चीजें प्रेरित के पांव के सामने लाते और जिसकी जरूरत है उसको प्रेरित बांट देते। ये कलीसिया पहले की थी, सारे चीजें उनकी कॉमन थी। और Acts 4 verse 35. और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। Yes, this was the early church. और ये जो है पहले की कलीसिया थी। This was the early church. ये पहले की कलीसिया थी। They used to bring everything at the apostles' feet. और वो सब कुछ जो है प्रेरितों के पांव पर लाते थे। And they used to, you know what the apostles used to do? Look at people's need and distribute whatever they receive. और प्रेरित लोग क्या करते थे? लोगों की जरूरतों को देखते थे और उस हिसाब से बांटते थे। I would like to tell you about a story about a sick father. और मैं आपको एक कहानी बताता हूँ एक बीमार पिता की। He was a government officer. और वो जो है
शासन का अधिकारी था। I do not know whether you know about government officers. Their jobs are always transferable. और मैं नहीं जानता कि आप सरकारी अधिकारियों के बारे में जानते हो कि नहीं, परंतु उनके जो नौकरियां होते हैं उनका तबादला होते रहता है। This father was working very far. और इनका जो पिताजी था वो काफी दूर काम करते थे। His wife was also working. His daughter was going to school. और उनकी माता भी उसकी पत्नी भी काम करती थी, और उनका जो उनकी जो बेटी थी वो स्कूल जाती थी। So every Saturday night, the daughter and the mother used to go to the father's house because he was far away working. तो हर शनिवार की रात जो माता और बेटी थी वो जो है पिता के घर जाती थी, क्योंकि वो दूर थे। Let me tell you, beloved, the father was sick. He couldn't come anytime. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पिता जो है वो बीमार हो गए, क्योंकि इसलिए वो हर बार नहीं आ पाए। And the daughter used to go every time on Monday morning. She used to leave and go to school. और उनकी बेटी जो है वो हर बार जाती थी शनिवार रात को, और फिर सोमवार को सुबह को वो स्कूल जाती थी। And she used to come back. She requested her father to come home. और उसने अपने पिता को कहा कि आप प्लीज वापस आ जाओ। This thing the mother and the daughter were doing years together. और ये माता और ये जो बेटी है वो ये चीज कर रही थी सालों तक। One day the daughter insisted the father. एक दिन जो बेटी है उसने पिता को कहा, When you will come home? कि आप कब घर आओगे? When you will come home? कब घर आओगे? When you will come home? कब घर आओगे? The father was very upright man. और जो पिता था वो काफी खरी चाल चलने वाला व्यक्ति था। He was on the bed. He couldn't get up. वो जो है बिस्तर पर था, वो उठ नहीं सकता था। He told his daughter, उसने अपनी बेटी को कहा, you ask Jesus. कि आप यीशु मसीह से मांगो। You ask Jesus. आप यीशु मसीह से मांगो। You know what that daughter did? आपको पता है उसकी बेटी ने क्या Before कहा? leaving to the school on that Monday morning, she knelt down next to the bed of the father. और सोमवार को स्कूल जाने से पहले वो गई और उसके पिता के बिस्तर के सामने उसने घुटना टेका। She folded her hands and prayed. उसने अपनी हाथ को जोड़ा और प्रार्थना Jesus, किया, please send my father home. यीशु मसीह कृपया करके मेरे पिता को फिर से घर भेज दे। Please send my father home. मेरे पिता को फिर से घर भेज दे। I love my father so मैं मेरे much. पिता से बहुत प्रेम रखती हूँ। I miss my father so much. मुझे मेरे पिता की बहुत याद Let me आती tell है। you, when she was praying, she was having tears in her और eyes. मैं आपको बताता हूँ कि जब वो प्रार्थना कर रही थी उसके आंखों के सामने उसके आंखों में आंसू आ गए थे। And she was crying and she was praying. और वो रो रही थी और वो प्रार्थना कर रही थी। Let me tell you something, मैं beloved. आपसे कुछ कहना चाहता हूँ The प्रियो। tears of God's children are very precious. और परमेश्वर के बच्चों के जो आंसू है वो काफी मूल्यवान है। He takes the count of every drop which comes from their eyes. और उनके बच्चों के हर एक आंसू का परमेश्वर जो है गिनती रखता है। He stores it in a vessel. और वो जो है उसको एक बर्तन में उसको संभाले रखता है। This little daughter prayed. और ये छोटी सी बेटी ने प्रार्थना किया। Let me tell you, the father who was sick for so many years, within 3 months, he became well and he went back to his home. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पिता इतने सालों से बीमार था वो फिर से ठीक हो गया और घर चले गया। This is what the Bible says. और ये पवित्र शास्त्र कहता है, जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, मेरा यीशु संभालेगा। Let me tell you, beloved, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रिय, I am talking about that God. मैं उस परमेश्वर के बारे में बात कर रहा हूँ। Don't take him lightly. उसे आप साधारण रीति से ना You लें। might be hearing about this God for the first और time. आप पहली बार इस परमेश्वर के बारे में सुन रहे हो। He loves you so वो much. आपसे बहुत प्रेम करता है। He loves you so much. आपसे बहुत प्रेम करता You can है। ask anything in the name of Jesus. आप कुछ भी पूछ सकते हो उसे यीशु मसीह के नाम He से। said, I will do it for you. उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। I will do it for you. मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। Isaiah chapter 66 and verse 1. और यशायाह का 66 अध्याय और पहला वचन। Heaven is his throne and the earth is his footstool. और यशायाह का 66 अध्याय और
verse 1, 66, Psalm 60, Isaiah 66 and verse 1. यहोवा यह कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? Yes, many people try to build house for God. बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए भवन बनाने की कोशिश करते हैं। Let us understand the God of the Bible. और आइए हम पिता परमेश्वर के बारे में समझते This is हैं। what God says. और ये परमेश्वर कहता है, Heaven is my throne, आकाश मेरा सिंहासन है earth is my और footstool. पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। You cannot build any house upon the earth for me. तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे? I cannot rest in the place which you make for me. और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? मैं उस स्थान में विश्राम नहीं कर सकता जो तुम मेरे लिए बनाओगे। This much great God we have. और ये महान परमेश्वर है हमारा। There are many people in this world wants to build temple for their God. और बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो अपने परमेश्वर के लिए मंदिर बनना चाहते हैं। Everywhere you will see temples and और temples. अगर आप देखोगे हर जगहों पर मंदिर और मंदिर है। You can't accommodate God upon this earth in any place. और तुम परमेश्वर को इस धरती के ऊपर किसी जगह पर सीमित नहीं रख सकते। Because Jehovah says, God of the Bible says, heaven is my throne, क्योंकि यहोवा कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन है, earth is my footstool. पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। You can't build a place of rest for me upon the earth. तुम मेरे लिए इस विश्राम करने का भवन इस धरती पर नहीं बना सकते। I hope so you are understanding the God whom you are praying today. मैं आशा रखता हूँ कि आप समझ रहे हो आप कैसे किस तरह के I hope so you understand the God who converts sorrow into joy. और मैं आशा रखता हूँ कि आप समझ रहे हो कि हमारा परमेश्वर जो है दुख को आनंद में बदल देता है। I hope so you understand the God of heaven who says you will lack nothing. मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हो हमारे स्वर्गीय परमेश्वर को जो कहता है कि तुम्हें किसी बात की घटी नहीं होगी। Yes, 1 Timothy chapter 3 and verse 16. और पहला तिमोथी का 3 अध्याय और 16। This is very, very important. You need to understand. बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको समझना है। And without the controversy, great is the mystery of godliness. He who was manifested in flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached among the nations, believed on in the world, received up in the glory. This is Jesus Christ. इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। ये यीशु मसीह है। This is the Son of God who left the heaven and came upon the earth. और ये परमेश्वर का पुत्र है जिसने स्वर्ग को छोड़ा और पृथ्वी पर आया। There is one question: why did God become man? और एक सवाल है कि परमेश्वर मनुष्य क्यों बना? Why did God become man? परमेश्वर मनुष्य क्यों बना? God became man to go through every pain and agony which we are going through, that he will experience everything which man is experiencing. परमेश्वर मनुष्य इसलिए बना ताकि वो हर एक दर्द, हर एक समस्या, हर एक ऐसी भावना से गुजरे जिससे मनुष्य गुजरा है। Matthew 1:23 says, मत्ती का पहला अध्याय और 30 वचन कहता He है, is Emmanuel, God with us. और वो इम्मानुएल है। He is Emmanuel. और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। This is the another name of Jesus और Christ. ये यीशु मसीह का एक और नाम है। Hallelujah, God with us. परमेश्वर हमारे साथ। He came upon the earth to experience every pain and agony. और वो धरती पर आया हर एक दर्द और हर एक जो है भावनाओं को का अनुभव लेने के लिए। 2 Corinthians 8 and verse 9. दूसरा कोरिन्थियों का 8वां और 9वां वचन। For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. He did great things to them who came to him. No one received nothing who came to him. They got anything and everything
and great things. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। Yes, further, you read further. और 10वां वचन कहता है, इस बात में मेरी सलाह यही है, यह तुम्हारे लिए अच्छा है, जो एक वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। Listen, he did great things to them who came to him. और उसने काफी महान काम किए जो उसके पास आए। No one went empty. कोई भी जो है खाली हाथ नहीं गया। No one went empty. कोई भी खाली हाथ नहीं गया। This is what the God of the Bible is. और ये पवित्र शास्त्र का परमेश्वर है। Mark chapter 3 verse 8 and 9. और मरकुस का 3रा अध्याय और 8वां और 9वां। And when they heard about all he was doing, many people came to him from Judea, Samaria, Idumea, and the region across the Jordan and around the Tyre and Sidon. Because of the crowd, he told his disciple to have a small boat ready for him to keep the people from crowding him. और यहूदिया और यरूशलेम और इदुमिया और यर्दान के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा न सके। Yes, there was so much crowd coming to Jesus Christ. और इतनी सारी भीड़ जो है वो यीशु मसीह के पास आ रही थी। Demon possessed were getting delivered. और जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग हैं, Lepers were getting healed. और कुष्ठ रोगी जो लोग जिनके पास कुष्ठ रोग से पीड़ित थे उनको चंगाई मिल रही थी। Blind were able to see. अंधे देख रहे थे। Lame was able to walk. और लंगड़े चल रहे थे। Let me tell you, born paralytic was healed. और जिसको लकवा मार गया था बचपन से उसको चंगाई मिल रही थी। Bible says there was a woman who was a sinner who came to Jesus Christ in Luke chapter 7 verse 38 and 39. और पवित्र शास्त्र कहता है लूका की 7वां अध्याय और 38 और 29 वचन में कि एक स्त्री थी जो पापी थी जो यीशु मसीह के पास आई। Bible says Jesus forgive her sins. और पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा कर दिया। Now let me tell you who needs Jesus Christ. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसको यीशु मसीह की जरूरत है। Let me tell you the sinner needs Jesus Christ. पापी को यीशु मसीह की जरूरत है। One who carries the sin long life all the way. और जो पाप को लेकर चलता है Yes, means who carries the sin along his life, along the way, every day, and he is burdened and he is frustrated. Those people need Jesus. और जो पाप को लेकर चलते हैं और वो पाप के द्वारा काफी वजन आ गया उनका, पाप का वजन आ गया उनके ऊपर और इसलिए वो काफी दबाव में आ गए हैं और वो हर दिन ये दबाव लेकर चलते हैं। ऐसे लोगों को यीशु मसीह से मिलना है। Psalms 38 verse 4 says sin is a burden. और भजन संहिता का 38 अध्याय और 4वां वचन कहता है कि पाप जो है वो बोझ है। Sin is a burden. पाप एक बोझ है। Many times our iniquity becomes too heavy. और बहुत बार हमारे पाप जो है वो काफी भारी बन जाते हैं। Let me tell you, we are not able to come out. Our head cannot come out of it. और बहुत बार जो है हमें इससे बाहर निकलना होता है पर हम बाहर नहीं निकल पाते। So much heavy the burden of sin is. इतना भारी है पाप का बोझ। Proverbs chapter 5 verse 22. और नीति वचन का 5वां अध्याय और 22वां वचन। You know what it says? The sin will bind them up. और क्या कहता है नीति वचन का 5वां अध्याय और 22वां वचन, दुष्ट अपने ही अधर्मों के कर्मों से फंसेंगे और अपनी ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। The sin is going to bind them up. और पाप जो है उन्हें अपने वो पाप के बंधनों में बंध जाएंगे। Many people are under depression because of their sin. और बहुत सारे लोग जो है समस्या में है
क्योंकि वो पाप के अंदर है। Many people have sleepless night because of their बहुत sin. सारे लोगों को रातों को नींद नहीं आती क्योंकि वो पाप के अंदर है। The past is putting pressure upon them. और पाप जो है और जो भूतकाल है उनके ऊपर दबाव को डाल रहा है। They cannot enjoy present, the future is वो dark. वर्तमान काल में जो है वो आनंद नहीं उठा सकते उसका, क्योंकि पाप जो है उनके ऊपर काफी वजन डाले रहता Proverbs है। chapter 13 and verse 21. और नीति वचन का 13 अध्याय और पहला वचन, Bible says wherever they will go, the sin will follow them. और 13 अध्याय और 21वां वचन कहता है, बुराई पापियों के पीछे पड़ती है परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। The sin will follow them. और पाप उनके पीछे पड़ेगी। Sin will follow them. बुराई पापियों के पीछे पड़ती है। Let's look to Numbers chapter 32 and verse 23. और आइए हम गिनती का 32वां अध्याय देखिए Verse 23. और 23वां वचन, The sin will hunt for you. और गिनती का Numbers 32 verse 23. पाप आपको ढूंढ निकालेगी जहां पर भी आप है, आपका पाप आपको ढूंढ निकालेगा। एक न एक दिन वो पाप आपको जरूर ढूंढकर आपको सामने ले आएगा। 23वां वचन, और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। यस, तुम्हारा पाप तुमको ढूंढ निकालेगा। दिस इज Psalms Numbers 32 and verse 23. हाँ, 32-23. और तुम्हारा पाप तुमको ढूंढ निकालेगा। This is what the Bible says. और ये पवित्र शास्त्र कहता है। Why we are talking about the sin? और हम क्यों पाप के बारे में बात कर रहे हैं? Because sin is the basic problem which hinders and we cannot have relationship with the God of heaven. कि पाप जो है वो एक बहुत ही बड़ी बाधा बड़ी है। बाधा है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक संबंध नहीं बना सकते। Jesus can only forgive your sins. यीशु मसीह ही आपके पापों को क्षमा कर सकता That is है। the reason he came upon the earth. और इसी कारण वो इस स्वर्ग में आए। Mark chapter 5 verse 19 and 20. और मरकुस का 5वां अध्याय और 19 और 20वां वचन, And he suffered him not, but said unto him, Go to thy house unto thy friends and tell them how great things the Lord has done for thee and how he had mercy on thee. Verse 20. And he went his way and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him, and all men were marveled. परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंबा करते थे। Do you know about this man? क्या आप इस व्यक्ति को जानते This हो? man was a demon possessed. ये एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति There था। were many demons and with him, inside और him. बहुत सारे दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी। He was not wearing any वो clothes. कोई भी कपड़े नहीं पहन रहा था। He was bound in chains. वो जो है उसे जो है जो चेन से बांधा गया था। And he was living in the graveyard. और वो जो है कब्रों में रहता था। He was such kind of man, and Jesus came to meet him. और वो ऐसा व्यक्ति था जिससे यीशु मसीह मिलने आए थे। Jesus came and delivered him. यीशु मसीह आए और उसको छुटकारा देके गए। People were astonished to see this man. और लोग अचंभित हो गए इस व्यक्ति को देखकर। He started going and telling what Jesus वो did. जाकर कहने लगा कि यीशु मसीह ने क्या किया है। Let me tell you, there are many people in this world who are demon मैं possessed. आपसे कहना चाहता हूँ बहुत सारे लोग इस संसार में जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। Demon torment them. और दुष्ट आत्माएं उन्हें सताती है। Let me tell you, they cannot sleep in the night, neither in the day. और वो रात को भी सो नहीं सकते, दिन को भी उन्हें चैन नहीं पड़ता। Some are so much tormented that they scream. इतने सताव से वो गुजर रहे हैं कि वो चिल्लाते हैं। Some are so tormented that they tore their own clothes. और वो इतने सताव से गुजरते हैं कि वो अपने जो कपड़े उसे फाड़ देते हैं। Let me tell you, Jesus is the one
who can deliver. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ही वो व्यक्ति है जो छुटकारा दे सकता है। John chapter 21 and verse 25. यूहन्ना का 21वां अध्याय और 25वां वचन। Jesus did so many things. यीशु मसीह ने कितने सारे काम किए, So many miracles he did. कितने सारे चमत्कारों को किया, So many people he healed. कितने सारे लोगों को चंगाई दी, So many people were delivered through demon और possessed. कितने सारे लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। Bible writes very clearly. पवित्र शास्त्र बहुत ही निश्चित रीति से There are लिखा है। so many incidents which happened in 3.5 years. 3.5 साल में कितनी सारी घटनाएं हुई That everything, if it has been written, the book cannot contain it. कि सब कुछ भी अगर लिखा जाता है तो किताब जो है वो एक किताब में नहीं आ सकता, There will be volumes and volumes and volumes. और बहुत सारे किताबें हो जाएगी। When he was there on the earth, what things he did. और जब वो धरती पर था तो उसने कितने बड़े काम किए। Job chapter 5 verse 9, Job chapter 9 and verse 10, he performs wonder that cannot be fathomed, miracles that cannot be counted. और अयूब का 5वां अध्याय और 9वां वचन कहता है, वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। That is our God. वही हमारा परमेश्वर That है, is the God of heaven. और वही स्वर्गीय परमेश्वर है। He does great and unsearchable things. और वो बड़े और महान काम करता है। Why I am telling you this today? और मैं क्यों बता रहा हूं तुम्हें ये आज? I believe that God is going to do many things today for those who are listening through the YouTube. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर बहुत सारी चीजों को करने वाला है जो हमें सुन रहे हैं आज उनके Why you लिए। are having tears in your eyes? आपके आंखों में आंसू क्यों है? You have come to the right place. आप सही जगह पर आए हो, Because Jesus is going to meet your need. यीशु मसीह आपकी जरूरत को आज मिलने वाला है। He is going to do marvelous things which has never happened in your life. वो अचंबा करने वाले कामों को करने वाला आपके जीवन में। God is a miracle worker. परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। God will do great things and great miracles. परमेश्वर महान चीजें और महान चमत्कार करेगा, So much that you will not be able to contain it. और इतना कि आप उसको अपने अंदर नहीं रख पाओगे। The hope which you have lost shall be restored. आशा आप खो चुके हो उसे फिर से वापस पालोगे। The God whom you prayed, who never answered, you cancel him and pray to Jesus. Mark my word, you will find victory. और जिस परमेश्वर को आप प्रार्थना करते आ रहे हो, जिसने आपको कभी उत्तर नहीं दिया, उसे हटा दो और यीशु मसीह को प्रार्थना करो, और आप मेरे शब्द को लिख लो कि आपको विजय मिलेगा। Let me tell you, take a chance with Jesus. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को एक मौका दो। Take a chance with Jesus. यीशु मसीह को एक मौका दो। Just call upon his name. और सिर्फ उसके नाम को पुकारो। As you call upon his name today, जैसे उसके नाम को पुकारते हो तुम, the Lord is going to touch you. परमेश्वर तुम्हें स्पर्श करेगा। It is very easy to make God of heaven your father. और बहुत आसान है बनाना स्वर्गीय पिता को तुम्हारा पिता। Yes, and I'm going to pray for everyone who is listening through the YouTube, that how you can make God of heaven your और मैं father. हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूंगा जो YouTube के द्वारा सुन रहा है कि आप परमेश्वर को अपना पिता कैसे बना सकते हो। Once you pray this prayer behind me, और एक बार आप इस प्रार्थना को करते हो मेरे पीछे, the God of heaven will become your father. स्वर्गीय पिता स्वर्गीय परमेश्वर तुम्हारा पिता बन जाएगा। Yes, you will have a relationship with him. और तुम्हारा एक संबंध बन जाएगा उसके And साथ। because he will become your father, you will receive every good from him. और क्योंकि वो तुम्हारा पिता बन जाएगा तो वो हर एक अच्छी वस्तुएं तुम्हें उससे मिलेगी। The sleep which you have lost for so many years, tonight you will sleep peacefully. और इतने सालों से जो नींद खोई है, आज आप शांति से सोओगे। Let me tell you, he is the God
of the heaven and the earth. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर है स्वर्ग और पृथ्वी का। If you do not know Lord Jesus, अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो if तो you do not have relationship with God the Father, आपके पास यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं है। I want you to close your मैं eyes. चाहता हूँ कि आप अपने आंखों को बंद करें। I am going to pray for मैं you. आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Just close your eyes. सिर्फ अपने आंखों को बंद करें। And as you close your और eyes, जैसे आप अपने आंखों को बंद करते just हो, repeat this prayer behind me. ये प्रार्थनाओं को मेरे पीछे बोलो। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, I am a born sinner. मैं एक जन्म से पापी हूँ। I come before you today. मैं आज तेरे सम्मुख आता हूँ। I believe मैं विश्वास करता हूँ that you died for my sins on the कि cross तू मेरे पाप के लिए मरा कलवरी की क्रूस पर and was resurrected on the third day. और तू तीसरे दिन जी उठा मेरे लिए। I call you in my life. और मैं तुझे मेरे जीवन में पुकारता हूँ। I accept you as my personal savior. मैं तुझे मेरा व्यक्तिगत मुक्तिदाता करके स्वीकार करता हूँ। Today I take a decision to follow you. और आज मैं एक निर्णय लेता हूँ तेरे पीछे होने का। And I say from today I will follow you all the days of my life. और आज से मैं कहता हूँ कि मैं अपने पूरे जीवन तेरे पीछे उलूंगा। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Have you prayed this prayer? आपने ये प्रार्थना को किया। This prayer is sufficient for you to have Jesus in your life. ये प्रार्थना काफी है कि यीशु मसीह आपके जीवन में आ पाए। Now Jesus has become through Jesus, God the Father, God of heaven has become your Father. और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर स्वर्गीय परमेश्वर आपका पिता बन चुका है। And He is the one who is going to give you the good things. और वही वो है जो आपको अच्छी वस्तुएं देगा। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहतों से बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, 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 बड़ी चाहतों से बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहतों से बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहतों से बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें. Before we pray for the sick, और बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने से पहले, before we pray for the sick, और बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने से पहले, before we pray for the needy, और जरूरतमंद लोगों के लिए प्रार्थना करने से let's पहले, turn to the last two scriptures, John chapter 15 and verse 13. और आइए हम आखिरी दो वचन की ओर देखें, यूहन्ना का 15 अध्याय और 13 वचन। Greater love hath no man than this, that a man laid down his life for his friends. और यूहन्ना का 15वां अध्याय 13वां वचन. 15वां अध्याय और उसका 13वां वचन।
इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। No one can show greater love than this. और कोई इससे बड़ा प्रेम नहीं दिखा सकता Jesus did for you. कि यीशु मसीह जो आपके लिए कर सकता है। He died for your sins, वो आपके पापों के लिए मरा that you shall have eternal life. ताकि आपके पास अनंत काल का जीवन। Let me tell you, if you have sinned, you cannot face God. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप पापी हो तो आप परमेश्वर से का सामना नहीं कर सकते। Wages of sin is death, Bible says. और पवित्र शास्त्र कहता है कि पाप का वेतन मृत्यु है। And if you carry the sin, one day you will die. You will never face God anytime. और जब आप अगर आप इस पाप को लेकर चलोगे तो एक दिन आप मर जाओगे और परमेश्वर से कभी आपकी मुलाकात नहीं होगी। You will always be in the eternal hell. आप हमेशा अनंत काल के लिए जो है वो नरक में रहोगे। I do not know why you are watching this today. मैं नहीं जानता कि आज आप ये क्यों देख रहे हो। But I know only one thing, God made you to watch this. पर मैं एक ही चीज जानता हूँ कि परमेश्वर ने आपको लगाया ये देखने के लिए। And that is the reason God has brought the way before you. और यही कारण है जिसके लिए परमेश्वर ने आपके सामने ये रास्ता लाया है। Do you want to have this kind of friend who will die for you? क्या आप चाहते हो कि ऐसा एक मित्र आपको मिले जो आपके लिए मरेगा? That is Jesus Christ. जो यीशु मसीह है। That is Jesus Christ. यीशु मसीह है। I will tell you about a police officer before I close. मैं एक पुलिस ऑफिसर के बारे में बताता हूँ बंद करने से पहले। He was very upright officer. काफी खरी चाल चलने वाला व्यक्ति था। And in his area there was no robbery, no dacoity, no murder, no offense. और उसके एरिया के अंदर कोई भी गलत काम नहीं होता था, चोरी नहीं, कोई हत्या नहीं होती थी। One day, एक दिन suddenly he came to know the offense started increasing. एक दिन उसे पता चला कि चोरी ये सब अपराध होने लग गए। And the offenses were increasing. और अपराध बढ़ने लग गए। He was very upset. वो काफी जो है उदास हो गया। He started searching for the person. और वो उस व्यक्ति को ढूंढने लग गया। A place he went where the offense was going to take place. और वो उस जगह पर गया जहाँ पर अपराध होने वाला था। And he attacked that place. और उसने वो जगह पर हमला कर When दिया। he entered into that place, he was in tears. और जब वो उस जगह पर गया तब वो उसके आंखों में आंसू आ गए। He saw his own son who was doing the offense. उसने अपने खुद के बच्चे को देखा, खुद के बेटे को देखा जो अपराध कर रहा था। He was the culprit. और वही अपराधी था। He had committed so many crimes. उसने इतने सारे अपराध किए थे। He took out the gun from his pocket. और उसने बंदूक को निकाला अपने पॉकेट। And he kept over his son. और उसने अपने बेटे के ऊपर रखा। And he said, son, you have committed so many और crimes. उसने कहा बेटे तुमने इतने सारे अपराध किए हैं। So many offenses you have committed. इतने सारे अपराध किए तुमने। I cannot keep you मैं alive. तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। You need to die. तुम्हें मरना पड़ेगा। You need to die. तुम्हें मरना पड़ेगा। You need to die. मरना पड़ेगा। The son was crying. और ये बेटा रो रहा था। The son said to the और father, बेटे ने पिता से कहा Father, have mercy over me. कि हे पिता मेरे ऊपर दया कर। Father, please forgive me. मुझे क्षमा कर। I will never do this मैं ये again. फिर से कभी नहीं करूंगा। Please forgive me. मुझे क्षमा कर। The father said, No, पिता ने कहा नहीं, you need to die. तुम्हें मरना पड़ेगा। But the son kept on asking mercy. परंतु बेटा जो है वो दया के लिए मांगता रहा। The father took out the revolver और पिता ने जो है वो बंदूक को निकाला। and he kept upon the revolver upon his son's head. और उसके बेटे के सर के ऊपर रखा। The son closed his eyes. और उसके बेटे ने आंखें बंद कर लिए। He said, He is going to die now. और उसको लगा कि वो अभी मरने वाला है। He said, Father, उसने कहा पिता please have mercy. मुझ पर दया कर। Give me one chance. एक मौका और दे मुझे। Give me one chance. एक मौका दे। Give me one chance. And suddenly he heard a big noise of the gun. और उसने
बंदूक की आवाज को सुना, he thought he is dead. उसको लगा वो मर गया है। But when he opened his eyes, जब उसने अपने आंखों को खोला, the father had shot himself. जो पिता ने अपने आप को गोली मार दी थी, Because of his son, he died. अपने बेटे के लिए वो मर गया। That is the why Jesus came upon the earth. और इसी कारण यीशु मसीह धरती पर आए। Because of your crime, you are going to face death. और आपके मृत्यु के कारण किसी को जो आपको जो है मृत्यु, आपके पाप के कारण आपको मृत्यु मिलने वाली थी। Because of your sins, the wages was death. और आपके पापों के कारण आपके पापों का वेतन मृत्यु था। When you cried for mercy, और आप दया के लिए रोए, when you cried for mercy, आप दया के लिए रोए, he took your death upon himself. उसने आपका मृत्यु अपने आप पर ले लिया। He died upon the और cross. वो कलवरी क्रूस पर मर गया। He died upon the cross. कलवरी क्रूस पर मर गया। Let me tell you, that is not the end of Jesus Christ. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो यीशु मसीह का अंत नहीं है। Jesus rose again on the third day. तीसरे दिन फिर से जी उठे। Death couldn't hold him. और मृत्यु उनको नहीं रोक पाई। Death couldn't hold मृत्यु him उनको नहीं रोक पाई, because it was not his sin. क्योंकि उसका पाप नहीं था वो, It was somebody else's sin. किसी और का पाप था। Let me tell you, beloved, मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रियो, he took so many people's sin upon his shoulder. उसने इतने सारे लोगों का पाप ले लिया उसके कंधों के ऊपर। Bible says when he was on the cross, पवित्र शास्त्र कहता है कि जब वो क्रूस पर था, the darkness came over the sky. कि जो आकाश में अंधकार छा गया था। God hid his face from his own son. परमेश्वर ने अपना खुद का जो है मुंह छिपा लिया था अपने बेटे से। Let me tell you, earthquake took place. और भूकंप आया था। Let me tell you, beloved, that is not a simple day. It was a unique day in the history of mankind. और ये कोई साधारण मृत्यु नहीं है, ये एक बहुत ही अलग मृत्यु थी जो पूरे मनुष्य जाति में हुई। Let's John chapter 10 and verse 18. यूहन्ना का 10वां अध्याय और 18वां वचन। Yes, John chapter 10 and verse 18. यूहन्ना का 10वां अध्याय और 18वां वचन। Let's read it in Hindi. और आइए हम हिंदी में पढ़े। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसको देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। Yes, no one can take it away from me, but I laid down myself. Jesus said, I laid myself down. मैं अपने आप को देता हूँ। Yes, he laid everything down. और उसने सब कुछ अपने आप को सब कुछ दे दिया। That is why he calls you today. इसलिए वो आज आपको बुलाता है। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहतों से बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहतों से बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें. If you are a sinner, और आप अगर पापी हो Jesus calls you. तो यीशु मसीह आपको बुलाते हैं। If you are sick, और अगर आप बीमार हो Jesus is calling you. यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। If you are depressed, Jesus is calling अगर you. आप निराश हो तो यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। If you are sorrowful in your heart, Jesus is calling और you. अगर आप अपने हृदय में दुख से भरे हुए हो तो यीशु मसीह आपको Wherever बुला रहे you हैं। are today, जहाँ कहीं भी आप हो, whatever situation you are going through, जिस भी परिस्थिति में आप हो, I can say only one thing. मैं सिर्फ एक चीज आपको बता सकता हूँ, Jesus is only the answer. यीशु मसीह ही उत्तर है। Just raise your right hand today. सिर्फ अपने दाहिने हाथ को उठाओ आज। And as the word we have read today, और जिस वचन को हमने पढ़ा है आज, I can give you anything. मैं आपको कुछ भी दे सकता हूँ। Not only good thing, but anything. मैं आपको सिर्फ अच्छी चीजें नहीं, कुछ भी दे सकता And हूँ। I can convert your curse
into blessing. और मैं आपके शाप को आशीष में बदल सकता हूँ। He says, I'm going to carry you. और वो कहता है कि मैं आपको उठाकर ले चलने I'm वाला going to हूँ। carry मैं you. आपको उठाकर ले चलने Just वाला lift हूँ। your hand today to Jesus today. सिर्फ अपने हाथ को उठाओ यीशु मसीह की ओर। Let's close our eyes today. और आइए हम अपने आंखों को बंद करें। Father in heaven, we just want to thank you. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं। Father in heaven, we just want to thank you. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं। Touch every hand which has been lifted up हर today. एक हाथ जो ऊंचा उठाया गया है उसको I स्पर्श pray करो। in the name of Jesus Christ. प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम I से। speak miracle in Jesus' name. चमत्कार को बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम I से। say by your stripes they have been और healed. मैं कहता हूँ कि तेरे घोड़े खाने से वो चंगे हुए हैं। I say that they have gone through death and they have got a new life. और मैं कहता हूँ कि वो मृत्यु के द्वारा गुजर चुके और अभी उन्हें एक नई जीवन मिलेगी। I pray freshness to come upon their life. और मैं एक नवीनता को कहता हूँ उनके जीवन के ऊपर I आए। speak every curse to be converted into blessing. और मैं कहता हूँ कि हर एक श्राप आशीष में बदल जाए। I pray for every child which has been sick and the mother is laying their hand upon that child. I pray over that child in Jesus' name, he shall be healed. और हर एक बच्चा जो बीमार है और जिसकी माता ने उसके बच्चे के ऊपर हाथ रखा है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसे चंगाई मिले। I pray for that father who is in coma in Bangalore. और मैं प्रार्थना करता हूँ उस पिता के लिए जो बैंगलोर में कोमा में है। I pray in Jesus' name, the word of Jesus will bring life upon his body and every instrument which is kept as a medical aid for him shall be removed and he will come back to life. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की वो जीवित हो जाए वापस से। I pray against every cancer in the name of Jesus Christ. मैं हर एक कैंसर के खिलाफ प्रार्थना करता हूँ। We cancel that word. हम उस शब्द को नकार देते हैं। I cancel HIV and AIDS also. और HIV और एड्स को भी नकार देते हैं। I come against tuberculosis in Jesus' और name. टीबी के खिलाफ आते हैं यीशु मसीह के नाम से। I pray every sickness which brings death in the name of Jesus Christ. Every name shall be the name under the name of Jesus. और हर एक बीमारी जो मृत्यु को लाती है उसके खिलाफ आता हूं मैं। हर एक नाम हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम You के can सामने feel the power of God right now. और आप परमेश्वर के सामर्थ को आज आप महसूस कर सकते हो। You can see healing coming and touching you right और now. आप देख सकते हो चंगाई आपको आके स्पर्श कर रही है। You can see the things which you are not able to do, you are able to do right now. और पहले जो आप नहीं कर सकते थे वो अभी आप करने लग गए हो। Yes, Jesus has touched you. हाँ, यीशु मसीह ने आपको स्पर्श किया Jesus है। has healed you. और यीशु मसीह ने आपको चंगाई दी है। This is only Jesus can do. ये सिर्फ यीशु मसीह कर सकते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह। Come on, let's say thank you, आइए हम Jesus. कहें धन्यवाद यीशु मसीह। Thank you, Jesus, शुक्रिया यीशु मसीह। for touching me. Thank you, Lord. मुझे स्पर्श करने के लिए शुक्रिया परमेश्वर। Yes, many are healed. और बहुत सारे को चंगाई मिली है। If you are healed today, और अगर आपको आज चंगाई मिली है, our number is coming on the screen. हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। Please testify on this number. और इस जो है नंबर पर जो है गवाही दे। Please send your prayer request on this number. और इस नंबर पर अपने प्रार्थना विनंती को भेजे। Don't keep the blessing to yourself. और अपने आशीष को अपने पास न रखे सिर्फ। Share this word to many people, और इस वचन को काफी लोगों के साथ बांटे। that they will come to know what God of heaven is. इसको पता लगेगा कि स्वर्ग का परमेश्वर क्या है। If you want to bless this ministry, और अगर आप इस सेवकाई को आशीष देना चाहते our हैं, account number is coming down. हमारा अकाउंट नंबर नीचे आ रहा है। You are free to give your offering on this account. और आप अपने अर्पण को इस अकाउंट पर दे सकते हो। Let's close our eyes as we have the blessing prayer. और आइए हम अपने आप को बंद करें जैसे हम अंत की प्रार्थना करते हैं। May the love of God, परमेश्वर पिता का the प्रेम, grace of our Lord Jesus Christ, मसीह का अनुग्रह and the communion of the Holy और Ghost पवित्र आत्मा की संगति shall be with us forever and ever. सभी के साथ रहे हमेशा रहे। And every person who is watching on the और YouTube, जो व्यक्ति हर एक व्यक्ति जो YouTube पर देख रहा है amen. कहे आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। See you next Sunday again. और अगले रविवार हम I hope so. Our channel is a great blessing to you. और मैं आशा रखता हूँ कि हमारा जो चैनल है वो आपके लिए एक बड़ी आशीष का कारण है। Amen. आमेन।